My name is Anusha Maheshwari, and today I'm again here just because of the opportunity ISKCON the team has provided me, for which I would genuinely like to thank each and entire member in the ITT team. Furthermore, I hope all of you are doing well and are in sound health by the grace of Almighty. So, today, before starting up, getting to the main topic, I would just like to add a flashback of one of my very first presentation when ITT really got a stand for itself, when ITT really started getting into recognition, and above all, when ITT really got a name, a stage, a value for itself. The presentation was based on Bhagavad Gita and its importance. The presentation consisted of a question which said that where does Bhagavad Gita lies in our lives? भगवत गीता आखिर हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करती है, आखिर उसकी वैल्यू क्या है, आखिर हम पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती है. द मेन क्वेश्चन इज इम्प्लीमेंट कहाँ पर होती है. द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम टुडे एज वेल. आज भी क्वेश्चन सेम है कि भगवत गीता आखिर है कहाँ पे हमारी जिंदगी में. हम पढ़ते हैं तो उसका यूज कहाँ पे, या फिर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं. मतलब एक चीज है ना, हम पढ़ रहे हैं तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं. एक बुक भी आप पढ़ते हो तो होता है ना कि यार इस बुक में अब ये होने वाला है, वो होने वाला है. यू हैव द थिंग इन योर माइंड व्हाइल रीडिंग अ सर्टेन थिंग. So the same question appears when you are reading Bhagavad Gita. The question remains unsolved, like a mystery. Bhagavad Gita itself is a mystery which will remain unsolved if you won't try to read it genuinely. Well, all of us know what Bhagavad Gita is. Bhagavad Gita was a conversation between a warrior, a loyal friend Arjuna, and his master as well as advisor Krishna. So Krishna was even his friend. The conversation took place on the battle of Kurukshetra, and to our greatest surprise, Bhagavad Gita is not just about a conversation. It also tells us about the cycle of birth and death, how to minimize our suffering. Furthermore, all of us are aware of the unprecedented global war, and the mankind is facing the same enemy. Even अब यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है, यहाँ पे हम भगवत गीता को जो है वो कोविड से कैसे रिलेट कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको भी हो रहा होगा. वेल, स्पीच तैयार करते वक्त ये मुझे भी हुआ था. बट देन आई केम टू नो दिस दैट even at the battle of Kurukshetra, even Arjuna went through the same dilemma, the same increasing anxiety, the same nervousness, the same heartedness, the same turmoil, the same nervousness and everything. But did he step back? क्या उसने बोला कि मैं जो हूँ वो ये बैटल नहीं लड़ सकता and I need to quit and I need to escape? He did not. But to our greatest surprise, through the guidance of his master, through the guidance of his friend, he won the battle of Kurukshetra. आज हमारे साथ भी यही हो रहा है. कोविड पेंडेमिक, आई नो मेनी ऑफ अस आर मेंटली डिस्टर्ब, बट वो मेंटल डिस्टर्बेंस को भी हम दूर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमें जो है वो वी नीड टू एस्केप फ्रॉम आवर लाइफ. नो, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम योर लाइफ. यू नीड टू फाइट बिकॉज लाइफ इज अ ट्रायल एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम अ ट्रायल. When life gives you lemon, you cannot make a lemonade and then blame life for it. You cannot. You need to fight. You can't just escape from it. Moreover, it is widely believed from a research that the COVID pandemic, this all scenario, it all started in China, in Wuhan, when some people who ate bats, the bats were carrying that virus, and that virus was transmitted from those humans worldwide. And today all of us are suffering here. Now here एक चीज जो है ऐसी है जो कि यहाँ पे नोट करी जा सकती है. It should be taken into consideration. वो क्या कि the concept in China is, चाइना में एक कंसेप्ट है कि anything you see on land पे आप जमीन पे आप कुछ भी देखो except motor cars, except vehicles, वो आप खा सकते हो, वो आप ले सकते हो. Anything you see in the seas, समंदर में जो भी देखते हो except the ships जो जाती करती हैं, उनके अलावा आप खा सकते हो. Anything you see in the sky, जो भी आप आसमान में देखो वो आप खा सकते हो except the airplane. So this eating habit is not only practiced in China but practiced worldwide. And to our greatest surprise, this is even practiced in Pakistan. People are not just eating animals and their meat. People are even
and surprisingly we call ourselves as human and them as animal. How strange. Well, coming back to the topic, अब यहाँ पर जो है भगवत गीता एक स्टेप अहेड है. How? भगवत गीता कहती है कि in chapter 9:27 it's written 9.27 it's stated that भगवान खुद कहते हैं that first the food should be offered to me and then later consumed. And all of you know that the food which is offered to Lord is so pure that all of us know that the pure food is generally healthy for a body, and you know it keeps the body away from such diseases. अब यहाँ पर not just offering to vegetarian food, भगवान ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कोई फल, पानी और फूल भी अर्पण करता है, मैं वो भी एक्सेप्ट करता हूँ. तो यहाँ पर भगवान ने कहाँ पर कहा कि मुझे जो है नॉन वेजिटेरियन फूड का. पहली बात तो हमें कोई भी ऐसा कुछ खाना ही नहीं चाहिए जो कि भगवान को ऑफर नहीं है, और हम जो है वो नॉन वेजिटेरियन तक चले गए. उनका मीट तो छोड़ो, उनका ब्लड भी ड्रिंक कर रहे हैं. क्या ये सही है? इट्स नॉट, इट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, बट कर रहे हैं. और यही करते हुए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. अब जब नेचर को एक्सप्लॉइट करोगे ना, यू योरसेल्फ विल बी एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज ये सब सफरिंग्स जो है ये ऑलरेडी स्टेटेड है भगवत गीता में, बट हम में से पढ़ने की जहमत ही कौन करता है? नो वन बॉदर्स टू रीड. अगर पढ़ा होता तो आज जो जिन्होंने खाया है वो तो चलो मानते नहीं है, वो एथियस्ट हैं. चाइना में पीपल डोंट यूजुअली बिलीव ऑन अ रिलीजन, दे आर एथियस्ट, बट हम तो मानते हैं ना. हमारे पास तो एक है ना, हमारे पास भगवत गीता है बताने के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस टाइम पे, मतलब whatsoever our routine is, we all know, but still भी हम भागते हैं, escape, मतलब you know जिंदगी से जान छुड़ाते. क्यों? क्या इतना भी हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते? जस्ट फॉर आवर ओन बेनिफिट, दूसरों के लिए भी नहीं, ये हमारा खुद का फायदा है. आपकी सफरिंग जो है आफ्टर डेथ जो है वो मिनिमाइज होंगी. ये किसके लिए काम आएगा? ये आपके लिए ही काम आएगा, ये हमें काम नहीं आएगा. बट मजे की बात तो ये है कि हम खुद के लिए भी अब कुछ नहीं करना चाहते. हम इतना बेबस हो गए हैं, बट इस बेबसी को भी दूर करना पड़ेगा. एज ऑल ऑफ अस नो वी आर लॉक्ड इन दिस लॉकडाउन. लॉकडाउन में अब लॉक्ड हैं, कुछ करने को है नहीं, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं. बट एक बात नोट करने जैसी है, एक बात यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सैनिटाइज करते हैं अपने आप को फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते करते हैं, मतलब हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं ना. इवन मास्क भी अपने डस्टबिन में फेंक देते. क्यों? ताकि अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसा है तो वो दूसरों को फिर जो है वो अफेक्ट नहीं करे. क्योंकि दिस वायरस, ये एक ऐसा वायरस है कोविड, कि ये जो है वो इंसान से ट्रांसमिट होता ही जा रहा है. मतलब ये मुश्किल से 3 दिन भी लास्ट करता है, मतलब इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? हम अपनी मेंटल फिजिकल प्रोटेक्शन करते हैं. वो कैसे? कि हम नहाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ऑल दैट थिंग. ये तो हो गई फिजिकल प्रोटेक्शन, जो कि हमने लिबादा ओढ़ा हुआ है जिस्म का, इसकी फिजिकल प्रोटेक्शन तो हमने कर ली. बट व्हाट अबाउट द मेंटल प्रोटेक्शन? जो मेंटली इतना यहाँ पे फिल्थ भरा हुआ है, जो इतना यहाँ पे कचरा भरा हुआ है, उसका इतना डर्ट भरा हुआ है, उसकी प्रोटेक्शन कहाँ से करोगे? कौन सी ऐसी सैनिटाइजर है, कौन सा इसका मास्क है जो ये सब कवर कर सकता है? कुछ भी नहीं कवर कर सकता सिवाय एक चीज के, दैट इज भगवत गीता. ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, भगवत गीता एक ऐसी चीज है जो कि ना सिर्फ आपको मेंटली आपको तैयार करेगी, मेंटली आपको सेटिस्फैक्शन देगी, बट इवन इट विल प्रोटेक्ट यू फिजिकली एज वेल. इट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग those acts, such things which will cause you trouble later on. So कहने का मकसद ये था कि I was just emphasizing, I was just trying to relate कि कोविड के भगवत गीता को हम कोविड में कैसे कर सकते हैं, उसका यूज कैसा है और कहाँ पे भगवत गीता यूज हो रही है. आई एम श्योर आपके पर्सपेक्टिव्स क्लियर होंगे कि भगवत गीता कहाँ पे हमें पढ़नी चाहिए, कहाँ पे नहीं पढ़नी चाहिए और उसका क्या यूजेज है हमारी लाइफ के अंदर. फर्दरमोर ठीक है, लॉकडाउन है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी चलता है, बैठ के बिग बॉस देख लिया, ट्विटर पे ट्वीट्स कर ली, फेसबुक पे स्टेटस डाल लिया, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा दिन बस उसी के अंदर ही घुसे रहे हम. भगवत गीता पढ़ रहे हो मतलब क्लियर योर मेंटल डर्ट एंड ऑल द फिल्म व्हाटएवर इज गैदर्ड अप ऑल हियर, and you yourself will
see the change because मैंने खुद पढ़ा है, not the entire भगवद गीता, but जहाँ तक भी मैंने पढ़ा है, I know that each and every word has its own particular meaning. मतलब it's so deep कि it's not less than a mysterious book, I would say. It's not less than a mysterious novel. So try करें पढ़ना. I know eventually तो सब नहीं होगा, but सब आराम से भी नहीं होगा. You need to try for it, and that's all I would say. Go for it. भगवान का नाम लो and everything will be alright. Hare Krishna. Take care. Stay safe.